السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب کہیے کیا حال احوال ہیں, کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے, امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں. ناول کا نام ہے محبت ہو گئی آخر. مصنفہ ہیں یمنا طلحہ. قسط نمبر 4. نہیں آپ غلط کر رہی ہیں, میری ساری ڈرائنگ بک خراب ہو جائے گی. زری نے سکینہ کو رنگ بھرنے سے روکا تھا. وہ بک اٹھا کر بستر سے اتری تھی. ارے کرنے تو دو ذرا. سکینہ نے التجا کی پر وہ نفی میں سر ہلاتی رہی. بالکل نہیں لائبہ, آپ ہی زیادہ اچھا کرتی ہیں. آپ وہ نہیں کر رہی جو میں نے بتایا. زری نے گردن ہلا ہلا کر سکینہ سے کہا تھا. کیوں تنگ کر رہی ہو اسے؟ شور کی آواز باتھ روم تک جا رہی تھی. لائبہ ایک کاندھے پر تولیہ رکھے نکلی تو سکینہ کو ٹوکا جو آگے بڑھ بڑھ کر زری سے کتاب لینے کی کوشش میں تھی. آپ ہی جو میں رنگ بتاؤں کرتی ہی نہیں ہے. زری نے موقع دیکھ کر پہلے جرا شروع کر دی. لائبہ آپ ہی بتائیں, لڑکی کے بال نیلے کرنے کو کہہ رہی ہے, کیسے کر دوں؟ سکینہ نے فوراً وکالت کی تو لائبہ کی ہنسی چھوٹ گئی. چلو بچوں آ جاؤ, کھانا لگا دیا ہے. دروازہ کھولتے ہوئے نگہت بیگم اندر آئیں اور سب کو کھانے کی میز پر جانے کا حکم دیا. زری اور سکینہ جو پہلے ہی بھوک سے مچل رہی تھیں تیز بھاگیں. لائبہ بال خشک کرو, ویسے ہی اتنا بھیگ کر آئی ہو, پھر طبیعت خراب کر کے بیٹھو گی. لائبہ کے بالوں سے پانی ٹپکتا دیکھ کر نگہت بیگم نے اسے فوراً ڈانٹا. وہ اکثر اس بات پر ڈانٹ کھایا کرتی تھی. جی مما. لائبہ نے کندھے سے تولیہ لیا اور بال خشک کرنے لگی. اچھے سے بال خشک کرو اور آؤ کھانا کھاؤ. چلو شاباش. نگہت بیگم کہہ کر چلی گئی تھی. اس نے تیزی سے بال شیشے کے سامنے خشک کرنا شروع کر دیے تھے. بہنوں کی موجودگی میں اس کے دماغ میں ابھرتے خیالات کچھ پل کے لیے دھندلے ہو گئے تھے, پر اب تنہا ہوئی تو دماغ کے گھوڑے چل پڑے. وہ لاشعوری طور پر شیشے میں دیکھتے ہوئے بال خشک کر رہی تھی اور سابقہ واقعات اس کے دماغ میں فلم کی طرح چل رہے تھے. اسے ایک ایک کر کے ہر واقعہ یاد آ رہا تھا. وہ کیسے سیف سے ملی تھی, کس قدر اس کے دل میں سیف کے لیے نفرت تھی, وہ کتنا اس سے بھاگتی تھی. پھر ساری کایا پلٹ گئی. سیف خود بخود اس کی زندگی میں شامل ہوتا گیا. آہستہ آہستہ اس کے دل سے اپنی نفرت مٹاتا گیا. وہ سوچتی ہوئی شیشے میں دیکھ کر بال خشک کر رہی تھی جب اس کا ہاتھ رکا. شیشے میں جس کا عکس اسے دکھائی دیا تھا, لائبہ کی آنکھیں مزید واہ ہو گئیں. اس کے ہاتھ سے تولیہ گر گیا. لائبہ نے تیزی سے گردن پیچھے گھمائی پر وہاں کوئی موجود نہیں تھا. اس نے الجھ کر جو ہی تولیہ اٹھا کر شیشے میں دیکھا تو سانس تک اٹک گئی تھی. اس کے گیلے گھنیرے سیاہ بال بائیں طرف کو آ گئے تھے. وہ خود کو کسی اور دنیا میں محسوس کرنے لگی تھی. وہ شخص اس کے بالکل قریب کھڑا اسے ستائشی نگاہ سے دیکھ رہا تھا. لائبہ گردن نہ ہلا سکی. وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی. سنو, ایک سرگوشی اسے اپنے بائیں کان میں محسوس ہوئی. تم شادی کے بعد بال کھلے رکھنا, زیادہ خوبصورت لگتی ہو. لائبہ نے جو ہی بائیں جانب دیکھا تو بے سود, وہاں کوئی نہ تھا. لائبہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے, کتنی دیر لگاؤ گی؟ نگہت بیگم دندناتی ہوئی کمرے میں آئی تھی. انہیں سخت برا لگتا تھا کہ کھانے کو انتظار کروایا جائے. ان کے اچانک کمرے میں آنے سے لائبہ نے دائیں جانب چونک کر دیکھا. جی ماما, بس آئی ابھی. اس نے فوراً ڈر کے مارے گیلا تولیہ بستر پر اچھالا, دوپٹہ سلیقے سے اوڑھا اور دروازے کی طرف لپکی. نگہت بیگم تو پہلے ہی آگے بڑھ چکی تھیں. کمرے سے نکلتے وقت لائبہ کے پیر رکے تھے. اس نے واپس کمرے کی طرف گردن گھمائی اور طائرانہ نگاہ ڈالی, پر وہاں کوئی نہ تھا. اس نے اپنے دماغ میں اٹھتے مچلتے خیالات پر غور کیا تو متعجب ہو کر رہ گئی. ایک چپت لائبہ نے ماتھے پر ماری اور وہاں سے بھاگی. تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا, زندگی دھوپ تم گھنا سایہ. جگجیت سنگھ کی آواز دھیمی تھی پر سیف اس سے دھن ملاتا ہوا گا رہا تھا. سمیہ کے لیے اس نے شیک اور برگر کا آرڈر دیا تھا. دونوں گاڑی میں بیٹھے آرڈر کا انتظار کر رہے تھے جب سیف نے ایف ایم آن کیا تھا. دھیمی مدھم آواز گاڑی میں پراسراریت پیدا کر رہی تھی. آج پھر دل نے ایک تمنا کی, آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا. تم چلے جاؤ گے تو سوچیں گے, ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا. ہم جسے گنگنا نہیں سکتے, وقت نے ایسا گیت کیوں گایا. تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا, زندگی دھوپ تم گھنا سایہ. جب تک وہ گاتا رہا سمیہ اسے دیکھتی رہی. اس کی آواز میں محو رہی. اسے دلوں کو جکڑنے کا ہنر آتا تھا. سمیہ تو پہلے ہی اس کی آواز کی تعریف کر چکی تھی اور اب بھی اس کے گانے کو سراہ رہی تھی. آرڈر لاتے ہوئے لڑکے نے شیشے پر ناک کیا تو گانے کا تسلسل ٹوٹا تھا. سیف نے اشیاء سمیہ کو تھمائیں اور پیسے دینے لگا تھا. اتفاق سے ایف ایم پر گانا بھی ختم ہو گیا تھا. ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سمیہ کی نگاہ خود پر محسوس ہوتے سیف نے متعجب ہو کر سمیہ سے پوچھا تھا. مجھے نہیں معلوم تھا تم کلاسیکل کے بھی شوقین ہو. سمیہ نے متحیر ہو کر پوچھا تھا. اس کے لبوں پر خوبصورت سی مسکان سجی تھی. سیف شیک کا سپ لیتے لیتے مسکرایا. واقعی سیف تم نے حیران کر دیا. کاش میں اس وقت کیمرہ آن کر کے یہ منظر قید کر لیتی. سمیہ نے مسحور کن لہجے میں کہا. ہلکا لیا ہوا ہے مجھے تم نے, اس کا مطلب ہے, سیف نے کہا.
मुझे तो डर था अगर तुम्हारी कहीं से गर्लफ्रेंड आ जाती तो मुझे तुम्हारे साथ देखकर तुम्हारी शामत आती। समिया हंस पड़ी थी। वो ना चाहते हुए भी ऐसी बात कह गई थी। शायद वो चेक करना चाहती थी, लेकिन सैफ कुछ देर को चौंका था। उसे शक तो था ही, पर अब यकीन हो गया था कि लाइबा ने उसके हवाले से कोई बात समिया से नहीं की थी। वो पहले भी नोट करता रहा था, जानता था अगर लाइबा समिया को बताती भी तो समिया का रद्द-ए-अमल ज़रूर आना था। तुम बेफिक्र होकर खाओ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, सैफ ने बेपरवाही से कहा था। नामुमकिन, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं यकीन ही नहीं कर सकती, झूठ बोल रहे हो, समिया ने बेबाकी से कहा तो सैफ ने उसे घूरा। तुम्हें क्यों झूठ लगता है? सैफ ने सवाल पर सवाल किया। क्योंकि ये झूठ है, अब तुम बताना नहीं चाहते वो और बात है, समिया ने लापरवाही से कहा तो सैफ उसकी तरफ मुड़ा। मैडम, मैं गर्लफ्रेंड जैसे खोखले रिश्ते पर यकीन नहीं रखता। अगर मुझे गर्लफ्रेंड रखनी ही होती तो सारी दुनिया देख चुकी होती। मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं, समिया भी उसकी जानिब मुकम्मल मतवज्जा हुई। ना ना, बात मत बदलो, बात इस वक्त लफ्ज़ गर्लफ्रेंड पर हो रही है, जो शौक चश्मे के अलावा कुछ नहीं। तो गर्लफ्रेंड से मोहब्बत ही होती है सैफ जमाल साहब, इसे बेहयाई का नाम तो मत दो। मोहब्बत जिससे होती है उसे इस खोखले और बेहया रिश्ते की नज़र नहीं किया जाता समिया सदीक साहिबा। मोहब्बत तो एक खूबसूरत और पाक जज्बा है। जिससे मोहब्बत होती है उसकी दिल से कदर और इज्जत की जाती है और जल्द अज जल्द बड़ों की रजामंदी से उसे अपनाया जाता है। उसने कहकर सामने स्क्रीन पर नज़रें जमा दी थी और समिया उसे ही तके जा रही थी। मेरे लिए मोहब्बत एक शफाफ जज्बा है, लिहाजा आइंदा मुझ पर शक न कीजिएगा मोहतरमा। अब जल्दी खा लें, अरसलान की कॉल्स पर कॉल्स आ रही हैं। वो उस जाजिब नज़र शख्सियत के ख्यालात को जानकर मबहूत सी हो गई। वो उसकी समझ से बिल्कुल अलग था। वो जैसा दिखता था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। कोई लड़की उसका ये रूप भी देख पाई होगी? समिया दिल ही दिल में मुस्कुराने लगी थी। सैफ ने शेक का ग्लास मुकम्मल किया और गाड़ी रिवर्स पर डाल दी। उन्हें जल्दी यूनिवर्सिटी पहुंचना था। तो तुम नहीं मानोगे, समन ने तनबीही अंदाज में कहा था। भाभी जान, आपको शायद मालूम नहीं, आपसे ज़्यादा उतावला मैं हो रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं उसके दिल की बात नहीं जान पाता कैसे भेज दूँ आप लोगों को रिश्ते के लिए? सैफ ने कहा, पर समन डटी रही। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें कहेगी कि उसे तुमसे मोहब्बत हो गई है? समन ने घुरका। ना कहे पर इशारतन कुछ तो कहे। फिलहाल तो लुका छुपी चलती रहती है, मैं उसे ढूंढता हूँ, वह फिर चुप जाती है, सैफ ने बेचारगी से कहा तो समन मुस्कुराते हुए उसके पास आई। वो करेगी भी यही सैफ, वो तुम्हें नहीं कहेगी ये सब। हम जैसी लड़कियां दिल का हाल नहीं बता सकती। हमारे बड़ों ने हमें शर्म सिखाई है, हदूद बताई है। तुम्हारा इंतज़ार बेमानी है, तुम मेरी बात मानो, मुझे उसकी अम्मी से बात करने दो अभी जाकर। लड़की को देख कर आने की बात करेंगे और बस। और अगर उसने सफाकी से इस रिश्ते से इनकार कर दिया फिर? सैफ ने बरजस्ता सवाल किया था जिसने समन को खामोश कर दिया। मैं कम अज़ कम इतना तो जानना चाहता हूँ भाभी कि अकेला इस सफ़र में मुसाफिर नहीं, वो भी साथ है। उसका रिश्ते से मना कर देना मुझे बेतहाशा अजियत देगा और अम्मा को आप जानती हैं, अगर एक बार ऐसा हो गया तो वो कभी कायल नहीं होंगी, उन्हें अलग ठेस पहुँचेगी, सैफ ने संजीदगी से कहा था। और अगर इस दौरान उसकी कहीं और निस्बत तय हो गई? समन ने पूछा तो सैफ सर्द सांस भरता रह गया। कोई जवाब है? वो कुछ ना कह सका, बस निचला लब दांतों तले दबा लिया, जैसे इस बात की वो उम्मीद कम अज़ कम नहीं करता। तुम्हें कुछ दिन का वक्त दे रही हूँ, इम्तिहान है इसलिए कुछ नहीं कह रही। पेपर से फारिग हो जाओ, फिर मैं खुद बात करूँगी लाइबा की अम्मी से, और तब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। समन ने नरम लहजे में तनबीह की थी। सैफ उसे मल्तजियाना अंदाज से देखता रहा कि वो ऐसा ना करे, कुछ वक्त रुक जाए, पर समन का लहजा कतईयत भरा था। सैफ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती, तुम मेरे देवर ही नहीं छोटे भाई जैसे हो। तुम्हारी खुशी मेरे लिए अहम है और मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है, समन ने संजीदगी से सैफ से कहा था। वो मजीद वहाँ रुकी नहीं, चलती चली गई। जानती थी सैफ फिर कुछ कहकर उसके इरादे को बदलने की कोशिश करेगा। वक्त के घोड़ों ने रफ्तार पकड़ ली थी। 2 दिन का इवेंट चुटकी बजाते गुजर गया। समिया 2 दिन तक बेहद मसरूफ़ रही थी। प्रोजेक्ट की वजह से लाइबा इवेंट अटेंड ना कर सकी थी, फिर इम्तिहान ने मजीद उसे स्ट्रेस में मुब्तला किया हुआ था। लाइबा का प्रोजेक्ट और यूनिवर्सिटी का इवेंट बेहतरीन रहा था। इम्तिहान शुरू हुए तो सब सर जोड़ बैठे पढ़ने लग गए और देखते ही देखते 1.5 हफ्ता गुजर गया। इम्तिहान अच्छे रहे तो लाइबा ने सुकून का सांस लिया था। इस पूरे दौरानिए में ऐसा नहीं था कि उस शख्स ने लाइबा के दिल पर दस्तक ना दी थी। वो अक्सर उसके ख्यालात में आता था और लाइबा कुछ पल के लिए ट्रांस में चली जाती थी। उसकी बातें, उसकी मोहब्बत से लबरेज आंखें लाइबा के अंदर झिझक सी पैदा करती थी। वो पढ़ाई की तरफ तवज्जो डालने के लिए अपनी सोचों को झटक देती और तवज्जो पढ़ाई पर मबजूल करने की कोशिश करने लगती। दूसरी जानिब भी हाल बेहाल था, वो भी दिल का। समिया की ज़िंदगी एलीट क्लास में गुजरी थी। उसने इर्द गिर्द जिन लड़कों को देखा था वो बेहद बेबाक और आज़ाद ख्याल थे। लड़कों का ऐसा ही खाका उसके दिमाग में बना था, पर सैफ उसकी सोच के बरखिलाफ था और वो जैसा था समिया के दिल को भा गया था।
प्यार और मोहब्बत जो बेमानी से लफ्ज़ थे उसके लिए, जिनको कभी उसने अहम ना समझा था, अब उन्हीं अल्फाज के हिसार में जकड़ गई थी। वो लाइबा को बताना चाहती थी और जल्द बताना चाहती थी, पर लाइबा के रद्द अमल से डरती थी। पर आज सुबह उठते साथ ही उसने फैसला कर लिया था कि लाइबा को सब कुछ बता देगी। इम्तिहानात ख़त्म हुए तो गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई। लाइबा समिया के साथ यूनिवर्सिटी आई हुई थी। दरअसल उसे कुछ किताबें लाइब्रेरी में देनी थी, साथ ही कुछ नावल इशू करवाने थे। वह एक नावल लेकर समिया के पास जा बैठी, जो गायब दिमागी की हालत में किताब के वर्क लाशऊरी तौर पर पलट रही थी। लाइबा किताब खोले पढ़ रही थी जब समिया की तलब भरी आंखें खुद पर महसूस करके उसने उसको देखा था। समिया सर नफ़ी में हिलाती हुई फिर किताब के वर्क पलटने लगी। लाइबा हनोज उसको उलझा देखकर परेशान होने लगी थी। जो कहना है कह भी दो। समिया की आंखों में जुस्तजू का अंसर समझकर लाइबा ने किताब बंद की और उससे कहा। समिया निचला लब काटती रह गई। खुद से एतराफ़ करना आसान था, लाइबा को बताना उतना ही मुश्किल। क्या हुआ समिया, कोई मसला हो गया है? लाइबा ने फिर पूछा। समिया ने सांस खींची और लाइबा की जानिब देखा। लाइब्रेरी में उस वक्त उनके अतराफ कोई न था। समिया खुद भी ना आती, पर लाइबा की वजह से उसे आना पड़ा, और इससे अच्छी जगह कहाँ थी जहाँ वो अपना एतराफ़ कर पाती। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, तुम जान से मार दोगी। समिया ने ज़ेरे लब कहा तो लाइबा के माथे पर शिकने नमूदार हुई। हैं, क्या कहा? लाइबा ने उसकी आंखों में देखकर कहना चाहा। वो शशोपंज में मुब्तला हो गई थी। लाइबा। समिया ने अल्फाज का चुनाव किया और लाइबा की तरफ घूमी। उसे लाइबा की पूरी तवज्जो चाहिए थी। लाइबा हमातन गोश थी। मुझे लगता है मुझे मोहब्बत हो गई है। समिया ने कहा ही था कि लाइबा की गजाली आंखें मजीद वाह हुईं। उसके चेहरे पर हैरानी ही हैरानी छा रही थी। समिया उसे नदामत से देख रही थी। वो शर्म के तालाब में गोता जन हुई थी। कभी ज़िंदगी में उसने सोचा नहीं था कि ऐसा एतराफ़ करेगी। क्या? लाइबा की चीख निकली तो समिया ने धीरे से खामोश रहने का इशारा दिया। उफ, निकाल देंगे लाइब्रेरी से, आहिस्ता बोलो। समिया ने सरगोशी में उसे घुरका तो लाइबा ने सर को हिलाया। तुम्हें मोहब्बत हो गई? किससे? लाइबा ने हैरानी में समिया से पूछा था। अब की बार उसने धीमी आवाज़ में कहा था। तुम मारोगी। समिया ने डरते डरते लाइबा को देखा तो वह मज़ीद उलझ गई। मैं क्या पागल हूँ? लाइबा ने खफकी से कहा। सुनकर हो जाओगी और फिर मारोगी, पर मैं क्या करूँ लाइबा, दिल ने मजबूर कर दिया है मुझे। अचानक कब कैसे किस तरह हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया। वो दिमागी तौर पर मुंतशिर सी लाइबा से कह रही थी। लाइबा ने उसे बगौर देखा। समिया को पहले ऐसे तो नहीं देखा था। पक्का नहीं होंगी, कौन है? लाइबा ने उसका हाथ थामकर नरमी से कहा था। वो मुस्तरिब सी लग रही थी। उसे कूल डाउन करना ज़रूरी था। लाइबा ने तजस्सुस अमेज़ अंदाज में पूछा। समिया ने उसकी जानिब देखा और फिर निगाह सामने कर ली। सैफ। ज़मीन फटना और उसमें दफन हो जाना किसे कहते हैं, लाइबा को आज मालूम हुआ था। ऐसा लगा था जैसे पूरा आसमान टूटकर उसके सर पर गिर पड़ा हो। सांस थी जो अटक गई थी। आंखें हैरानी के आलम में साकत हो चली थीं। समिया क्या कोई और भी होता तो लाइबा को मोम की गुड़िया समझ बैठता। वो साकित और जामिद समिया को देखती रही थी, जो उसकी हालत से गाफिल सामने तसव्वुर में सैफ को देख रही थी। मैं उसे अपने दिल का हाल बताना चाहती हूँ लाइबा, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे तो मालूम भी नहीं वो कैसी लड़की की ख्वाहिश रखता है। समिया मज़ीद कहने लगी। लाइबा के कान भी साएं साएं हो रहे थे। आंसुओं का गोला उसके हलक में अटक कर रह गया। वो बात करना चाहती थी पर सक्कत ना थी। बमुश्किल उसने आंसू अपने अंदर उतारे थे। क्या सैफ भी? लाइबा के कपकपाते लब कहने लगे। अरे नहीं, उसे तो मालूम भी नहीं। समिया ने उसके ख्याल को झटका दिया। लाइबा की अबतर हालत कुछ कुछ संभलने लगी। वो एक ही पल में जिस शख्स पर भरोसा करने लगी थी उसका धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लाइबा ने अपनी नज़रें समिया पर से हटा लीं। अब आंसू उसकी आंखों में जमा होने लगे थे। उसने बमुश्किल खुद को कंपोज किया था। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम्हें मोहब्बत हो गई है? लाइबा ने परेशानी के आलम में उससे सवाल किया था। वो चुपचाप खड़ी खुद को आईने में देख रही थी। घर आते साथ ही उसने सर दर्द का बहाना बना लिया था और किसी को भी कमरे में आने से रोका था। कमरे में जाते ही उसने बैग बिस्तर पर रखा और मुंतशिर से इधर उधर देख रही थी कि अपना अक्स उसे शीशे में नज़र आया। लाशऊरी तौर पर उसके कदम उस कदावर शीशे की तरफ बढ़े थे। उसकी आंखें उसकी हालत की आगाही दे रही थीं। चेहरे से मानी साफ अखज़ हो रहे थे और दिल ज़ोर से धड़कने लगा था। उसने बगौर अपनी आंखों को देखा था। जब एक शख्स आपके हवासों पर छा जाए, दूर कहीं से समिया की बाज गश्त हुई थी। लाइबा साकित और जामिद खड़ी अपने अक्स को देखती रही। जब उसके ना होने से दिल और दिमाग उसी की जानिब माइल हो, समिया की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। सुनो, तुम शादी के बाद बाल खुले रखना बहुत खूबसूरत लगती हो। यकायक उस बाज गश्त में एक और आवाज़ शामिल होने लगी थी, और जब वो सामने हो तो दिल अपने काबू में ना रहे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा? लाइबा की धड़कन बेकाबू होने लगी थी।
دل اس پر بھروسہ کرنے لگے، اس کی موجودگی کو سراہنے لگے، جب اس کی باتیں دل کو بھانے لگیں۔ لائبہ میں کیا سمجھاؤں تمہیں، پر تنہائی میں اگر وہ شخص دل و دماغ پر چھا جائے جس کے ہونے سے زندگی خوبصورت لگنے لگے، بس وہی احساس شاید محبت ہے۔ تمہیں کبھی یہ احساس ہوا ہے؟ نہ سوچا، نہ سمجھا، نہ سیکھا، نہ جانا، مجھے آ گیا خود بخود دل لگانا۔ وہ خوبرو شخص اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ کر اس کے دماغ پر یوں حاوی ہوا کہ لائبہ کو وہ انہی کپڑوں میں نظر آنے لگا تھا جو اس نے شہریار کی مہندی میں پہنے ہوئے تھے۔ لائبہ کی نظریں خود سے ہٹ کر اس پر ٹک گئی تھیں۔ وہ محبت سے لبریز آنکھوں سے لائبہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کون آ گئی دل ربا مہکی مہکی، فضا مہکی مہکی، ہوا مہکی مہکی۔ اس کی آواز لائبہ کو پورے کمرے میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، پر دراصل یہ اس کے اندر بازگشت کر رہی تھی۔ تم جادو کرنا کب بند کرو گی؟ دیکھ نہیں رہی تمہارا جادو ہی تو ہے جو میں جھوم اٹھا ہوں۔ وہ ایک دم گول گھوما، لائبہ کی آنکھیں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ محبت ہو گئی ہے، تمہیں بھی ہو جائے گی ایک دن، اس دن سمجھ آئے گی اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ محبت کے میم سے جب آشنا ہو جاؤ گے تم، ہم ہی نظر آئیں گے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ کہہ کر ایک دم غائب ہوا۔ تم حواسوں پر اسی لیے سوار تھے؟ آخری مصرے پر غور کرتے ہوئے لائبہ نے کپکپاتے لبوں سے کہا تھا۔ سیف کی موجودگی میں اس کی ابتر ہوتی حالت، اکیلے میں اس شخص کا حواسوں پر چھا جانا جس کی باتوں سے لائبہ جھجک جاتی تھی، یہ تمام کیفیات جن پر وہ فوکس نہیں کرتی تھی، جن سے وہ بھاگ رہی تھی، کھل کر اس کے سامنے نمودار ہوئیں۔ یہ انسانی فطرت ہی تو ہے کہ جب تک کسی شے کا چھن جانے کا خوف نہ ہو اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا نہیں جاتا۔ سیف کی بے لوث محبت دیکھ کر بھی لائبہ ایک طرف خود کو نہیں کر پاتی تھی، لیکن آج سمیہ کے دل کی بات جان کر اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اس کی کوئی قیمتی شے لے جا رہا ہے۔ مجھے؟ لائبہ نے اپنے عکس سے پوچھا تو اس کی آنکھوں نے تسلیم کیا۔ محبت ہو گئی آخر؟ یہ انکشاف اس پر کھلا تو لائبہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ ساحر اس کے دل پر قابض ہو گیا تھا، اس کی نیندیں اڑا گیا تھا، اس کا سکون محال کر گیا تھا۔ اس حقیقت کو خود تسلیم کرتی ہوئی اس نے خمدار پلکیں جو ہی بند کی تو موتی گرتے چلے گئے۔ تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ کس سے؟ تم مارو گی؟ سمیہ کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو لائبہ نے کرب سے آنکھیں کھولیں۔ میں کیا کروں لائبہ، دل نے مجبور کر دیا ہے مجھے۔ اچانک کب، کیسے، کس طرح ہو گیا کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ سمیہ کی کیفیت اس کی آنکھوں میں سمائی ہوئی تھی۔ وہ ذہن کے پردے پر آج کے واقعے کو یاد کرنے لگی تو زیر لب مسکرائی، پر اس مسکراہٹ میں درد کا عنصر تھا۔ اس نے آنسو پونچھے اور ابتر ہوتی حالت کو درست کیا۔ بمشکل خود کو سنبھالتی ہوئی وہ اٹھی تھی۔ اب اسے فریش ہونا تھا اور نکہت بیگم سے ضروری بات کرنی تھی۔ سیف خیریت تو ہے؟ اچانک یونیورسٹی بلا لیا؟ سمیہ نے کہا۔ چلو دیر مت کرو، ایک جگہ جانا ہے، سیف نے کہا تو سمیہ نے اچنبھے سے دیکھا۔ کہاں؟ سمیہ نے ساتھ کھڑے ارسلان، سہرش، معید اور مزید ممبران کی طرف سوالیہ نگاہ سے دیکھا تھا۔ ہمیں خود نہیں معلوم سمیہ، سیف کہہ رہا ہے کوئی سرپرائز ہے اور اچانک سب کو یونیورسٹی میں اکٹھا کر لیا، سہرش نے کہا۔ وہ خود بھی وجہ نہیں جانتے تھے۔ کیسا سرپرائز؟ سمیہ نے خوشی اور حیرانی کے عالم میں پوچھا۔ تم لوگ چلو تو پتہ چل جائے گا، سیف نے سب کو ایک ساتھ کہا اور آگے بڑھ گیا۔ سب ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب سیف کے پیچھے چل پڑے جو آڈیٹوریم کے دروازے کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے پیچھے آتے سب ممبران کو دیکھا۔ جب سب پہنچ گئے تو سیف نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم سر، سیف نے اسٹیج پر کھڑے انچارج کو سلام کیا تھا جو پوڈیم کے پاس موجود تھے۔ سب ممبران سمیت سمیہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ کرسیوں پر کئی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ اساتذہ موجود تھے۔ سیف نے سب کو تابعداری سے سلام کیا تھا اور اپنی سوسائٹی کے اہم لوگوں کا تعارف کرواتا رہا۔ اس کے بعد اس نے سب کو اشارتاً بیٹھنے کو کہا تھا۔ سیف نہ جانے کس سرپرائز کی بات کر رہا تھا۔ سب کے سب الجھن کا شکار ہو گئے تھے۔ سب ممبران نے کرسی سنبھالی تو پوڈیم کے پاس کھڑے انچارج نے بات شروع کی۔ مجھے بہت خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہماری یونیورسٹی نے ایسا کام سر انجام دیا ہے جو ہم سب کے لیے فخر کا باعث بنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس یونیورسٹی نے بہترین طلباء لیے ہیں اور انہیں طلباء نے اپنی کارکردگی سے یونیورسٹی کا نام پورے ملک میں روشن کیا ہے۔ میں وقت کی کمی کے باعث بات کو مختصر کروں گا۔ آج ہم نے یہاں ایک چھوٹی سی سیریمنی رکھی ہے۔ ہمارا ارادہ تو پہلے ہی تھا کرنے کا، لیکن فائنل امتحان کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا۔ ہماری یونیورسٹی میں کئی سوسائٹیاں موجود ہیں جو بہترین کارکردگی دکھا رہی ہیں اور ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ یا پروگرام لے کر آتی ہیں جس سے یونیورسٹی کی شہرت میں مزید اضافہ ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح ہماری انٹرٹینمنٹ سوسائٹی جن کے ہیڈ سیف جمال جو یہاں اس وقت اپنے ممبران کے ساتھ موجود ہیں، پچھلے دنوں ہونے والا ایونٹ جو کہ 3 دن پر مشتمل تھا، جس کے پیچھے ان طلباء کی بھرپور محنت شامل تھی، اس کی کامیابی آپ سب کے سامنے ہے۔
ऑडिटोरियम की तालियों के शोर से गूंज उठा था। कई तलबा जो समर कोर्सेज लिए हुए थे उनमें से भी आज ऑडिटोरियम में शामिल थे। इस इवेंट के पीछे मकसद खास नेक नियति थी। ब्लॉसम दारुल अतफाल, जिससे आप सब वाकिफ़ हैं, जो कई सालों से ज़रूरतमंद बच्चों की तालीम और तरबियत में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता रहा है, ख़ुसूसन उनके लिए मुनक्किद किया गया था। इस 3 दिन पर मुश्तमिल इवेंट से जो फंड्स इकट्ठे हुए थे वो रकम दारुल अतफाल में डोनेट की गई थी, जिससे बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देने में इस्तेमाल किया जाएगा। इवेंट से हासिल शुदा रकम से उनकी इंतज़ामिया के कई मसाइल हल करने में मदद मिली है और उसी को सराहते हुए आज के अखबार में हमारी यूनिवर्सिटी का नाम भी शामिल किया गया है। इंचार्ज ने एक अखबार का सफ़ा मल्टी मीडिया स्क्रीन पर दिखाया तो मेंबरान के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। एक पुरजोशी सी उन तमाम मेंबरान पर छा गई थी। ये हमारी यूनिवर्सिटी हमारे स्टाफ के लिए फ़ख्र की बात है, लिहाजा मैं चाहूँगा कि भरपूर तालियों के साथ आप सब मिलकर हमारे काबिल तलबा को सराहें, जिनकी मेहनत ने आज हमारी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है। उनके कहते ही तालियां बज उठी थी। तमाम मेंबरान ने ज़ोर से तालियां बजाना शुरू की थी। कुछ ने हूटिंग की आवाज़ भी निकाली थी। आज की सेरेमनी में हम इंटरटेनमेंट सोसाइटी के हर मेंबर, जिसने जी जान लगाकर 3 दिन पर मुश्तमिल इस इवेंट को अमली जामा पहनाया, सर्टिफिकेट तकसीम करेंगे और बाकी सोसाइटियों से भी यही उम्मीद करेंगे कि वो कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करें जिससे हमारी यूनिवर्सिटी को तारीफ़ की निगाह से देखा जाए। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा इंटरटेनमेंट सोसाइटी के हेड सैफ जमाल को। सैफ का नाम आते ही तमाम मेंबरान ने ज़ोरों शोर से हूटिंग की और तालियों से ऑडिटोरियम गूंज उठा था। सैफ जमाल, आप स्टेज पर आएँ। सैफ ने सर को जुम्बिश देते हुए पूरी पुरजोशी दिखाई थी। वो खुश दिली से स्टेज की तरफ भागा था। उसके बाद हर मेंबर बारी बारी अपना सर्टिफिकेट लेते रहे। तालियां बजती रहीं, लोग उन्हें सराहते रहे। सब मेंबरान समिया समेत बहुत खुश थे। सेरेमनी का इख्तिताम हुआ तो सैफ इंचार्ज से जाकर मिला था। अरसलान, सहरिश, समिया, मोइद सब उसके साथ मौजूद थे। इंचार्ज ने खूब तारीफ़ों से उनके काम को सराहा था। सैफ का चूँकि ये आखिरी साल था, लिहाजा इंचार्ज सोसाइटी के हवाले से भी उनसे बात कर रहे थे। सैफ ने अपने मौजूदा मेंबरान को उनसे मुतारफ़ करवाया था, जिनमें समिया भी थी। ये वो तलबा थे जो फ़िलवक्त पढ़ रहे थे। फ़ंड्स इकट्ठा करने का ये तरीका काबिल तारीफ़ था। हम आगे भी ऐसे इवेंट करते रहेंगे, इंचार्ज ने सैफ से कहा था। जी सर, ज़रूर। प्लान तो मेरा था, लेकिन इस प्लान का पूरा सेटअप करने और अखराजात सब समिया, सहरिश, मोइद और अरसलान ने देखे थे, सैफ ने कहा तो इंचार्ज ने काबिल सताइश से उन सबको मुबारकबाद दी थी। सब बहुत खुशी खुशी ऑडिटोरियम से निकले थे जब समिया ने सैफ से कहा था, तुम्हें सब मालूम था? ज़ाहिर है, और मेरा ही प्लान था कि तुम सबसे छुपाऊंगा। इत्तफाक की बात है, तुम में से कोई अखबार नहीं पढ़ता क्या? सैफ ने सबको तंजिया कहा तो सबके सब हंस पड़े। तुम सब लोगों ने बेहतरीन काम किया और इसी खुशी में मैं हफ्ते के दिन एक पार्टी दे रहा हूँ। सब ने एक दूसरे को देखकर खूब शोर मचाया था। लेकिन सैफ, पार्टी तो हमें तुम लोगों को देनी चाहिए। तुम, सहरिश, अरसलान, सबको फेयरवेल तो हमें देनी चाहिए। समिया ने एक साथ मेंबरान से पूछा तो सबने मस्बत जवाब दिया। तो फिर तय हुआ, पार्टी हमारी तरफ से होगी, तुम सब के लिए, समिया ने ऐलान किया तो मेंबरान के शोर से सैफ मजीद कुछ ना बोल सका। चलो, जैसी तुम लोगों की मर्जी, मेरा खर्चा बच गया, सैफ ने लापरवाही से कहा तो सबने ना ना का नारा लगाया। तुम पार्टी में हमें इंटरटेन करोगे अपने गानों से, मोईद ने आइडिया दिया तो सबने उससे इत्तफाक किया था। पार्टी की जगह और वक्त तय हुआ तो सब मेंबरान आहिस्ता आहिस्ता चले गए थे। पीछे बचे ये 4 ही अफराद थे जब सैफ ने समिया से ख़ास तौर पर शुक्रिया कहा था कि उसके होने से सोसाइटी को काफ़ी मदद मिली थी। अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, समिया वाकई झींप सी गई। देखो, तारीफ़ के मामले में मैं कम अज़ कम लफ्ज़ों में कंजूसी नहीं करता, सैफ ने कहा। सिर्फ तारीफ़? इतना ही किया है तो कुछ और दो, समिया ने कंपोज होकर कहा था, जबकि दिल अंदर से बुरी तरह धड़के जा रहा था। डन, तुम जो कहोगी दूंगा, सैफ ने पुरजोशी से कहा तो समिया का दिल उछलकर हलक में आ गया। पक्का? मुकर तो नहीं जाओगे? समिया ने हालत पर काबू पाकर उससे कहा था। बिल्कुल पक्का। सैफ का कतईयत भरा लहजा समिया के दिल को खुश कर गया। वो सोच चुकी थी उसे क्या चाहिए था। सैफ, क्या सोचा है फिर? समन दनदनाती हुई अंदर आई थी। वो कई दिन से सैफ को तलब भरी निगाह से देख रही थी, जिसे सैफ ठीक ठाक नज़रअंदाज कर रहा था। इस वक्त भी समन अंदर आई तो वह गिटार पर धीमी धुन बजा रहा था। उसने समन को देखा और फिर गिटार पर मसरूफ़ हो गया। समन को शदीद गुस्सा आया। उसने झटके से गिटार छीनकर बिस्तर पर फेंका। सैफ लब दबाता रह गया। तुम्हें उससे वाकई मोहब्बत है? समन ने झंझोड़ने वाले अंदाज में कहा। आपको क्यों शक है? सैफ ने पूछा। तो फिर मुझे कॉल करने दो। समन मुश्तिल खड़ी उसे घूर रही थी। 3 दिन से उसे कॉल कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन तो उठा नहीं रही। सैफ झंझला उठा। तुम्हारा नंबर उसके पास है? समन ने तशवीशी अंदाज में पूछा। हाँ, उसके पास मेरा नंबर है, सैफ ने ज़िच होकर कहा। तुम रहने दो, मैं फ़ोन करती हूँ। हो सकता है वो कहीं मसरूफ़ हो, या शायद वो तुमसे बराह रास्त इस बारे में बात ना करना चाह रही हो, समन ने फरमाइशी अंदाज में कहा तो वो लब काटता रह गया।
वो मना कर देगी भाभी। सैफ के अंदर बुरे अंदेशों ने करवट ली तो चेहरा मजीद उतर गया। लाइबा की तरफ से कोई लचक ना पाकर वो पहले ही उम्मीद खोने लगा था। क्यों, उसने तुमसे कभी कोई ऐसी बात की? समन ने पूछा। की ही तो नहीं, जानता नहीं हूँ क्या चाहती है वो, सैफ ने बेबसी से कहा तो समन ने उसे नरमी से देखा। सैफ, हर लड़की अलग होती है, शायद वो ऐसी कोई बात अपने वालिदैन से भी नहीं कर सकती और ना ही तुमसे। मुझे बात करने दो, तुमने अपनी पसंद मुझे बता दी, अब हम बड़ों को संभालने दो। समन ने समझाया तो वो खामोश हो गया। इसको तो आज छोड़ूंगी नहीं मैं। समिया गुस्से से गाड़ी से निकली और गेट खोलकर अंदर चलती चली गई कि आलिफ चचा उसे दिखाई दिए जो गाड़ी साफ करने में मसरूफ़ थे। गेट खुलने की आवाज़ पर आलिफ चचा ने समिया को देखा तो मुस्कुराते हुए पूछा, अरे समिया बेटी कैसी हो? ठीक हूँ चचा, ये गाड़ी किसकी खड़ी है बाहर? बाहर अजनबी गाड़ी देखकर समिया ने आलिफ चचा से पूछा। वो बेटी मेहमान आए हुए हैं, आलिफ चचा ने बताया तो समिया ने सर को जुम्बिश दी और मेन डोर की तरफ बढ़ गई। जो ही उसने हैंडल पर हाथ रखा दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। सामने निगहत बेगम खड़ी थी जो समिया को अचानक देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला हुई थी। उनके साथ एक और खातून और एक साहिब मौजूद थे। निगहत बेगम के अकब में खड़े रऊफ साहब उनसे ही गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, समिया बेढब सी कहने लगी। वालेकुम अस्सलाम समिया, कैसी हो? इरम, इससे मिलो, ये समिया है, लाइबा की बहुत पुरानी और जिगरी सहेली। निगहत ने मुतारफ़ करवाया तो खातून ने और उनके साथ एक और लड़की ने उसे मुस्कुरा कर देखा। हेलो, समिया ने कहा, वो भी बदले में मुस्कुराई थी। लाइबा कमरे में है, निगहत ने समिया को इतला दी तो समिया इस बात में गर्दन हिलाकर अंदर चली गई। उसने एक बार ज़रूर तशवीशी निगाह से उन लोगों को देखा था, खुदा जाने कौन थे। उसने दंदनाते हुए लाइबा के कमरे का दरवाज़ा खोला तो कमरे में मौजूद लाइबा समेत सकीना भी डर गई। कहाँ गायब हो तुम? समिया एकदम चीखी। अरे समिया, आप ही आराम से, डरा दिया मुझे, सकीना ने दिल पर हाथ रख कर कहा था। तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? समिया को पाकर लाइबा मधुर सी मुस्कुराई थी पर उसके सवाल पर लाइबा सोच में पड़ गई। सकीना खड़ी तमाशा देख रही थी। समिया लाइबा को बेखबर देखते हुए गुस्से से झुलसी। उसने हाथ में पकड़ा मोबाइल ऑन किया और नंबर डायल किया। रिंग जाने लगी थी। कमरे में खामोशी के बायस मोबाइल की वाइब्रेशन सुनाई देने लगी। सबने गर्दन इधर उधर घुमाई जानने के लिए कि आखिरकार आवाज़ आ कहाँ से रही थी। सकीना जो सिंगार में इसके साथ खड़ी थी दराज खोली तो मोबाइल नज़र आया। आप ही का मोबाइल तो दराज में था। सकीना ने मोबाइल लाकर लाइबा को दिया। ओह, मैं शायद घर आकर बेध्यानी में इसे दराज में डालकर भूल गई थी। लाइबा ने सफाई पेश की पर समिया का गुस्सा ठंडा ना हुआ। मोबाइल भूल गई तो क्या दोस्त को भी भूल गई? कब आए तुम लोग फार्म हाउस से? समिया ने दोनों से एक साथ पूछा था। 2 दिन के लिए लाइबा और उसके घर के अफराद खाला की फैमिली के हमरा फार्म हाउस गए हुए थे, इसीलिए लाइबा 2 दिन से उससे रब्ता ना कर सकी। ये बात तो समिया को मालूम थी। उसे गुस्सा इस बात का था कि लाइबा ने आने की इतला भी ना दी थी, पर वो भी क्या करती। मुस्तकिल इन 3 दिनों में सैफ की कॉल ने उसे परेशान कर रखा था। वो काफ़ी डिस्टर्ब रही थी और घर आते साथ ही उसने मोबाइल दराज में डाल दिया था। कल शाम तक आ गए थे, सकीना ने डरते डरते कहा था। समिया ने शिकायती नज़र से लाइबा को घूरा जो खामोश खड़ी थी। ये लोग कौन थे जो अभी गए? समिया ने लाइबा से पूछा। लाइबा आप ही को देखने आए थे, उमर भाई की फैमिली है, सकीना ने बताया तो समिया का गुस्सा हैरत में तब्दील हो गया। लाइबा खामोश खड़ी उसे देखती रही। समिया को वो बहुत बदली बदली लगी। वो हाजिर दिमाग लग रही थी, ना ही बेहद खुश नज़र आ रही थी। लाइबा जानती थी कि वो कसूरवार थी और समिया का गुस्सा जायज़ था, इसलिए खामोश रहने में ही भलाई थी। कल शाम तक आ गए, आकर एक मैसेज ही कर देती। और ये सब क्या है लाइबा? समिया ने परेशान होकर लाइबा से शाकी लहजे में कहा। सकीना तुम बाहर जाओ। लाइबा ने सकीना को बाहर जाने का कहा तो वह लब काटती हुई बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद हुआ तो समिया ने लाइबा को फिर घूरा। उसकी आंखों में कई सवालात थे। सॉरी, मेरी गलती है, कल आते ही सर में दर्द था इसलिए तुम्हें इतला देना भूल गई। फिर आज उमर की फैमिली आ गई तो मौका ही नहीं मिला। लाइबा ने मधुर आवाज़ में वजाहत दी। ये सब क्या है लाइबा, तुमने मुझे भी नहीं बताया इस बारे में? समिया ने पूछा। कह तो रही हूँ, सब इतनी अचानक हुआ। नरगिस खाला ने पहले मामा से बात की थी, उमर की फैमिली आना चाह रही थी। फिर हम फार्म हाउस गए तो वहीं सब तय पा गया। मुझे मालूम नहीं था कि अगले दिन ही ये लोग आ जाएंगे, वरना मैं तुम्हें लाजमी बताती। वो आंखें चुरा गई और बिस्तर के सिरहाने जा बैठी। पर तुम्हें तो अभी शादी करनी नहीं थी, फिर ये सब? निगहत आंटी ने फोर्स किया है ना? समिया फिर आपे से बाहर हुई तो लाइबा ने उसका हाथ नरमी से पकड़ा। नहीं नहीं, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। अभी तो सिर्फ देखने आए थे, बाबा को समझ आया तो फिर ऑफिशियल कर देंगे रिश्ता। उमर और उसकी फैमिली ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। उनका इरादा साल के आखिर में निकाह का है ताकि पेपर्स दाखिल करवा दें। तमाम फॉर्मेलिटी होते होते मेरी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। लाइबा ने समझाया तो समिया का गुस्सा जाता रहा। तुम खुश हो? समिया ने उसकी आंखों में झांक कर पूछा। कुछ ऐसा था जो उसे शक में मुब्तला कर रहा था। बहुत ज़्यादा। उमर वेल सेटल्ड है, लायक और मेहनती है, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं।
बस बाबा का फैसला है। लाइबा ने कहा तो समिया के दिमाग में उमड़ते ख्यालात का जोर टूटा। शायद उसे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। अब तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, लाइबा ने पूछा तो समिया की बातें खिल उठी। उसने आज होने वाला तमाम वाक़या बताया और बैग से सर्टिफिकेट निकाल कर लाइबा को दिखाया, जो बेहद मुतासिर हुई और खुशी से उसकी बातें सुन रही थी। मैंने मिस कर दिया, काश मैं होती वहाँ, लाइबा ने पछतावे से कहा। मुझे पता होता तो मैं तुम्हें फार्म हाउस से भी पिक कर लेती, लेकिन सैफ ने सबको सरप्राइज़ दिया था, समिया ने कहा। तुम ये डिज़र्व करती हो समिया, इसलिए तो तुम्हें मिला। लाइबा ने उसके कंधे पर 2-3 बार हाथ मारकर शाबाशी दी थी। और अब तुमने सैफ के बारे में क्या सोचा है? सर्टिफिकेट एक तरफ रख कर लाइबा ने बमुश्किल समिया से पूछा था, जो वैसे ही बताने के लिए बेताब थी। हफ्ते के दिन हम सैफ और उसके ग्रुप को फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं। बस तभी दुआ है कुछ हो जाए, कोई तरतीब बन जाए। लाइबा ने मुस्कुराकर समिया को देखा, पर आंखों में उमड़ते आंसुओं ने रुकने का नाम ना लिया। वो बिस्तर से उठी और अलमारी की तरफ चली गई। उसने आंख के नम होते किनारे साफ किए, पर वो भी समिया थी। लाइबा के अचानक उठने पर उसे ताज्जुब हुआ। उसके अकब में खड़ी समिया लाइबा को उलझी हुई नजर आई। उसने हाथ से लाइबा को पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। लाइबा की आंखें नम थीं। सकीना को मना भी किया था मस्कारा ना लगाए, अब देखो आंखों में से पानी बह रहा है। लाइबा ने साफ झूठ बोला। तुम इसलिए 3 दिन से मुझसे राब्ता नहीं कर रही कि तुम्हें बुरा लगा? समिया के सवाल पर लाइबा ने शशदर होकर समिया को देखा था। मैंने तुम्हें सैफ के हवाले से जब से बताया, उसके बाद से मेरी तुमसे कोई बात नहीं हुई। तुम्हें बुरा लगा है ना लाइबा? समिया ने फिर पूछा तो लाइबा तरदीद में गर्दन हिलाने लगी। आंसुओं का गोला हलक में अटकने के बायस उससे बोला नहीं जा रहा था। मैं जानती थी तुम ये कबूल नहीं करोगी, लेकिन लाइबा सैफ ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। वो बहुत अलग और बहुत मुनफरिद है। समिया की बात पर लाइबा ने मुतहैयर होकर समिया को देखा था। वो बात का रुख कहीं और ही ले गई तो लाइबा की जान में जान आई। तुम्हें 1 साल से समझा रही हूँ, पर जानती हूँ जो तुम्हारे दिल से उतर जाए फिर दिल नहीं जीत सकता। वो दिल ही तो जीता था, वो नामुमकिन को मुमकिन कर चला था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे बुरा हरगिज़ नहीं लगा। और तुम सच कहती हो, वो वाकई बहुत तमीज़ और तहज़ीब का मालिक है। मैं उसके घर वालों से मिल चुकी हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। तुम्हारा इंतखाब बेहतरीन है। अब बताओ क्या करोगी फेयरवेल पार्टी में? लाइबा ने मौजू बदला तो समिया भी रिलैक्स हुई। दुआ करो जो मैं करना चाहती हूँ वो हो जाए। ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। यार लाइबा, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या पहनूं? तुम कुछ मदद कर दो। तुम हर लिबास में प्यारी लगती हो, कुछ भी पहन लो, लाइबा ने कहा। वो बिस्तर पर नीम दराज फ़ोन कान से लगाए समिया से बात कर रही थी। इस तारीफ़ के लिए शुक्रिया मोहतरमा, अब आप बताएंगी क्या पहनूं? समिया ने कहा तो लाइबा सोचते हुए कहने लगी, तुमने पिछले दिनों स्याह कुर्ती ली थी, वो जीन्स पर पहन लो, अच्छी लग रही थी। लाइबा ने याद दिलाया तो समिया ने वो कुर्ती तलाश करना शुरू कर दी। हाँ मिल गई, ये अच्छी रहेगी। समिया ने फ़ौरन उसे गुलफाम को प्रेस करने को दे दिया। फ़ोन वो पहले ही बंद कर चुकी थी। करीबन आधे घंटे में उसे होटल पहुंचना था और वो अभी तक तैयार नहीं हुई थी। वो जल्दी जल्दी फ्रेश होकर निकली और लाइबा का बताया गया लिबास पहन लिया। चेहरे पर वो हल्का फुल्का ही मेकअप करती थी। उसकी जिल्द मौसम बहार की तरह हर वक्त फ्रेश और तरोताज़ा होती थी। उसने आंखों पर आई लाइनर लगाया और मस्कारा उसे पलकों को खूब खमदार किया। होंठों पर हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई, कानों में बालियां लटकाईं, खमदार बालों को सेट किया और खुद को कदावर आईने में एक बार सरता पैर देखा। वो भला की हसीन लग रही थी। लाइबा का मुंतखब किया गया लिबास उस पर जच रहा था। उसने गुलफाम को लेट आने की इत्तला दे दी थी। शाम का झटपटा हर सू था। उसने काले रंग की खूबसूरत सी सैंडल्स पहनी और फ़ोन पर सैफ को कॉल मिलाई। यार सैफ, तुम पहुंच तो नहीं गए? फ़ोन उठाते ही समिया ने कहा था। बस निकल रहा हूँ, सैफ ने भी उजलत में कहा। गुड, मुझे पिक कर सकते हो? समिया ने पूछा। तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ? सैफ ने पूछा। टायर पंक्चर हो गया है, समिया ने बसोरती आवाज़ से कहा था। ओह अच्छा, तुम रेडी हो, मैं 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ, सैफ ने कहा तो समिया ने फ़ोन बंद किया। एक शरारती मुस्कान उसके लबों पर सजी थी जब गेट पर खड़े गार्ड ने ताज्जुब से समिया को देखा और कहा, पर बीबी समिया, टायर ठीक है, मैंने खुद देखा है। गार्ड के कहने पर समिया ने अपने बालों से एक पिन खींची और उसको टायर में मार दिया। देखते ही देखते गाड़ी के टायर से हवा निकलती रही। गार्ड का मुंह खुले का खुला रह गया। ये क्या कर दिया बीबी? उसने बेचारगी से कहा। अब हो गया पंक्चर, समिया ने खूब शरारत से कहा तो गार्ड बेचारा सर पकड़कर बैठ गया। ड्राइवर आ जाए तो कह दीजिएगा कि गाड़ी ठीक करवा दे, समिया ने तीखे नकोश से कहा था। गार्ड ने सर झटक लिया। उसकी हरकतें अक्सर तिफलाना हुआ करती थी और उससे सभी वाकिफ़ थे। सैफ उसे पिक करके मुंतखब जगह पर ले गया था जहाँ सभी दोस्त अहबाब जमा थे। होटल का एक हिस्सा उनके लिए अलग कर दिया गया था जहाँ वो आज़ादी से मौज मस्ती कर सकते थे। खूब हल्ला गुल्ला और बातें हुई थी उन सबके दरमियान। खाना आया तो सबने खाने के साथ इंसाफ किया और उसके बाद सबकी पुरजोश फरमाइश पर सैफ ने चंद गाने गाए थे। समिया उसकी आवाज़ में मदहोश सी हर गाना एंजॉय कर रही थी।
बेहतरीन वक्त गुजरा था उन सब का। कई तस्वीर ली गई थी ताकि उन लम्हों को कैद कर लिया जाए। कई आंसू भी बहे थे। फाइनल ईयर था जिसके बाद सब अपनी अपनी मंजिलों और ज़िंदगियों में सेटल्ड हो रहे थे। फिर वक्त निकलना और मिलना इतना आसान नहीं था। पार्टी ख़त्म हुई तो सबने एक दूसरे को अलविदाई कलमात कहे और अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ जाने लगे। समिया सैफ के साथ उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। मौका देखकर जब उसने महसूस किया कि सब चले गए हैं, समिया भागती हुई ड्राइविंग सीट के दरवाजे के पास रुकावट बनकर खड़ी हो गई, जिसे सैफ अभी अभी खोलने लगा था। क्या हुआ? सैफ ने उसे यूं करते देखकर पूछा। रात के 11 बज रहे थे। सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त कम थी। स्ट्रीट लाइट जल रही थी और उनकी पिलाहट समिया के चेहरे को धमका रही थी। क्या हम चलकर जा सकते हैं? समिया ने फरमाइश की तो सैफ की हैरानी के बायस तैवरी चढ़ गई। तुमने कहा था जो मांगूंगी दोगे, आज मांग रही हूँ। उसने हाथ बांधकर सैफ को उसकी बात याद दिलाई तो सैफ सोच में पड़ गया। तुम्हें मालूम है रात का वक्त है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है समिया। सैफ ने मना करना चाहा पर समिया ने जिद पकड़ ली। तुम साथ तो हो, क्या होगा? और वैसे तुम मुझे काफ़ी हल्का ले रहे हो। अगर मैं अभी गाड़ी लाती तो अकेले ही ड्राइव करके जाती। समिया टस से मस ना हुई थी। सैफ उसे हैरानी से देखता रहा। अजीब जिद थी उसकी। चलो ना सैफ, घर पास ही तो है, इतना दूर भी नहीं, चलकर भी जाएंगे तो आधा घंटा लगेगा। समिया ने फिर जिद की तो सैफ कुछ ना कर पाया। उसने खुद ही इतना बड़ा दावा जो किया था अब अपनी ही बात में फंस गया। ठीक है मोहतरमा, जैसा आप कहें। सैफ के राज़ी होने पर समिया एकदम खुश हुई। सैफ ने गाड़ी को लॉक किया और उसके साथ चल दिया। समिया का इरादा टहल टहल कर चलने का था, लेकिन सैफ की रफ्तार थोड़ी तेज़ थी। वो समिया की ज़िद को नागवार नज़र से देख रहा था। अजीब ज़िद थी। शहर के हालात वो भी जानता था और समिया इस वक्त उसकी ज़िम्मेदारी थी। वो बाहिफाजत समिया को उसके घर पहुंचाना चाहता था, बस और कुछ नहीं। समिया को भी उसकी रफ्तार से रफ्तार मिलानी पड़ी, जो उसके लिए मुश्किल ना था, क्योंकि वह खुद बहुत एक्टिव थी। मोहतरमा, इस ख्वाहिश की वजह जान सकता हूँ? सैफ ने पूछा। बस यूं ही कुछ बातें करने का दिल चाहा। गाड़ी में जाते तो 10 मिनट में घर पहुँच जाते, समिया ने कहा तो सैफ सर झटक कर रह गया। क्या बातें करनी है तुम्हें? सैफ ने पूछा। तुम बताओ अपने घर वालों के बारे में, कौन कौन है, क्या करते हैं सब? समिया ने मौजू छेड़ा और सैफ बताता चला गया। समिया उसकी फैमिली के बारे में पहले ही लाइबा से पूछ चुकी थी और उसे सैफ की फैमिली बेहद पसंद आई। सब सुनने में ही बेहद मिलनसार और वसी दिल के मालिक लग रहे थे। आयान कितने साल का है? समिया ने सैफ के भतीजे के बारे में पूछा। 6 साल का होने वाला है अब तो, सैफ ने बताया। सो स्वीट, क्यूट होगा। तुम खेलते होगे उसके साथ? समिया ने पूछा। हाँ, बहुत खेलता हूँ, हमारे घर की रौनक ही वो है, सैफ ने बताया। वो फिर आयान की कई शरारतें समिया को बताने लगा था, जो आयान घर पर किया करता और समन से डांट से बचने के लिए सैफ की मदद लेता। समिया उसकी बातें सुनकर खूब इंजॉय कर रही थी। देखते ही देखते समिया का घर करीब आता गया। वो दीगर बातें कर रहे थे जब समिया ने सैफ से वो सवाल पूछा जिसका वो कब से इंतज़ार कर रही थी। आप ही, सकीना भागती हुई कमरे में आई। क्यों शोर मचा रही हो? मुश्किल से सोई है ज़री। लहबा जो कमरे में ज़री के पास लेटी थी, सकीना की आवाज़ पर एकदम चौंकी थी। आप चलें प्लीज़, आप ही, बाथरूम में लाल बेग आ गया है, सकीना ने जितना डरते डरते कहा। लाइबा ने सुनकर सर पीट लिया। हद है सकीना, लाल बेग है, कोई मगरमच्छ तो नहीं। जाओ जाकर फ्रेश होकर आकर लेटो, लाइबा ने डांटा। पर सकीना बसोरती शक्ल बनाकर लाइबा को देखती रही। लाइबा ने एक नज़र जरी पर डाली और बिस्तर से उठी। देखकर आप ही, उड़ने वाला भी हो सकता है। सकीना की बात पर लाइबा भी एकदम से डरी। लाल बेग जब तक ज़मीन पर चल रहा हो ठीक है, उड़ने लगे तो अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। अब डराओ तो नहीं। वो किचन से फिनिश लाई और बाथरूम में चली गई। सकीना लाइबा को देखती रही और दरवाजे पर खड़े होकर इंतज़ार करती रही जब तक लाइबा ना निकल आई। अब जाओ, मार दिया है। लाइबा निकली तो सकीना को डपट कर बोली। पक्का ना? लाइबा ने टिश्यू पेपर में मरे हुए लाल बेग को सकीना के मुंह के पास नचाया तो सकीना की चीख निकल गई, जिसे उसने फौरी दबा लिया। जरी नींद में किसमसाने लगी थी, लेकिन फिर सो गई। तुम फ्रेश होकर सो, मुझे नमाज भी पढ़नी है, मैं जागूंगी जब तक मामा बाबा नहीं आ जाते, लाइबा ने उसे कहा और सकीना बाथरूम में घुस गई। सैफ, एक बात पूछूं? समिया ने लफ्ज़ों का चुनाव किया और सैफ से कहा। सैफ ने हुकारा भरा। अगर तुम पर कोई अपनी जान निसार कर दे तो क्या करोगे? समिया के सवाल पर सैफ ताज्जुब से हंस पड़ा। ये कैसा सवाल है? सैफ ने पूछा। तुम्हारा नज़रिया मोहब्बत के हवाले से जानकर मैं उस दिन काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। तुम जैसा शख्स इस जज्बे की कदर करना जानता है, तो अगर तुम पर कोई इस बात का दावा करे कि वह तुम पर कुर्बान हो जाए तो क्या करोगे? उसे पूछूंगा कि वजह क्या है जान निसार करने की। सैफ ने मजाक में बात को टाला, पर समिया संजीदा से उसके सामने आ गई। वो कदम पीछे पीछे चल रही थी और सैफ उसके साथ साथ था, आगे आगे बढ़ रहा था। मजाक मत करो सैफ, मैं सीरियस हूँ, समिया ने कहा। सैफ हंसकर खामोश हो गया। दिल फिर से इज़्तिराब होने लगा था। वो अप्सरा फिर उसके ख्यालों पर छाने लगी थी। उसकी बेरुखी सैफ को दुख में मुब्तला कर रही थी। तुम मोहब्बत पर यकीन नहीं रखते? सैफ के पास से कोई सवाल ना आया तो समिया ने पूछा।
क्यों नहीं रखता? सैफ ने संजीदगी से कहा। तो जब एक लड़की तुमसे रात गई ये सवाल करे तो तुम कुछ नहीं समझ सकते? समिया की चमकती आंखों ने सैफ की आंखों को घेरा था। उसके चेहरे पर तलब देखकर सैफ के कदम वहीं रुक गए। समिया एकदम हंस पड़ी। उसका चेहरा उसके दिल की अक्कासी कर रहा था। सैफ उसे बगौर हैरानी से देखता रहा। क्या करूं? कभी सोचा नहीं था मैंने कि ज़िंदगी में ये एडवेंचर भी फेस करूंगी। मोहब्बत के नाम से दुश्मनी थी, पर अब नहीं। तुमने हर सोच बदल दी मेरी। समिया का इंकशाफ सैफ को सकते में मुब्तला कर गया। वो उसकी शक्ल तकता रहा जो एतराफ़ कर रही थी। कहते हैं दिल की बात करने में देर नहीं करनी चाहिए। बस यही सोचकर आज हिम्मत जमा की है। समिया की आंखों की चमक सैफ बखूबी देख सकता था। सैफ, अगर मैं तुमसे मोहब्बत का तकाजा करूं तो पूरा करोगे? सैफ खामोश रहा। उसने समिया पर से नज़रें हटा ली थी। यह लड़की पूरी शिद्दत से मोहब्बत का इजहार कर रही थी और सैफ को उसका दिल तोड़ना मुश्किल लग रहा था। तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? सैफ के पास से खामोशी और मतानत खैज तासुर देखकर समिया ने परेशानी से पूछा। सैफ ने खुश्क होते लबों पर जुबान फेरी और समिया की तरफ देखा। हाँ, वो मोहब्बत की कदर जानता था और उसमें धोखा नहीं दे सकता था। शायद तुमने इजहार करने में देर कर दी, या शायद मैंने किसी और से मोहब्बत करने में पहल कर दी समिया, उसने धीरे और मतानत खैज अंदाज में कहा था। समिया के तो जैसे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। उसे ज़ोर का झटका महसूस हुआ था। आंखों में चमक यकलख्त मांद पड़ गई थी। तुमने अपने दिल की बात बताई, मैं इसकी कदर करता हूँ। सच पूछो तो मुझे बल्कि बुरा भी नहीं लगा। अगर मेरी ज़िंदगी किसी और के नाम ना होती तो मैं तुम्हारे तकाजे पर गौर करता। तुम बहुत अच्छी हो समिया, पर शायद किस्मत में ये नहीं लिखा। सैफ ने नरमी और रसानियत से उसे समझाया तो समिया का सकता टूटा। वो एकदम से हंस पड़ी जिसमें दर्द की आमेजिश झलक रही थी। मतवरम आंखों से उसने सैफ को देखा था जो वाकई बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। क्या मैं पूछ सकती हूँ वो लड़की कौन है? तुम ये जानकर क्या करोगी? सैफ ने कहा। तुमने तो उस दिन कहा था कि कोई नहीं है, समिया ने पूछा। मैंने ये नहीं कहा था कि मोहब्बत नहीं है। कौन है वो खुशकिस्मत? खुशकिस्मत तो मैं हो जाऊँ अगर वो मेरी हो जाए। क्या मतलब? बस तुम इतना समझ लो, वो जो कोई भी है सबसे अलग और मुनफरिद है। अगर वो मान जाए तो इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत और कोई नहीं। तो तुम उसका इंतज़ार कर रहे हो? मोहब्बत वक्त मांगती है समिया, एहसास मांगती है, कदर मांगती है। मैं एहसास और कदर तो दे चुका, अब वक्त भी उसके नाम कर दिया है। समिया बीवी, मेम साहिबा बुला रही हैं। वो दोनों समिया के घर के आगे खड़े थे जब गुलफाम ने समिया को पुकारा। सहर ने बालकनी से समिया को देख लिया था। गुलफाम की अचानक आवाज़ पर समिया के साकत वजूद में हरकत सी हुई। उसने दरवाजे पर खड़ी गुलफाम को देखा तो सर्द सांस खींचती रह गई। एक पल में ही दिल का टूटना क्या होता है ये एहसास ही जानलेवा था। उसने मुतवरम आंखों से सैफ को देखा जो उससे ज़्यादा कर्ब में मुब्तला लग रहा था। तोड़ फोड़ तो उसके अंदर भी हो रही थी, पर ना जाने क्यों से सैफ के लिए तरस महसूस हुआ। बहुत रात हो गई है समिया, तुम्हारा राज मेरे साथ रहेगा। मैं औरत की इज्जत करना जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं चलता हूँ, देर हो रही है। वो कहकर आगे बढ़ गया। समिया उसे जाता तब तक देखती रही जब तक वो नज़रों से ओझल ना हो गया हो। समिया, आर यू ओके? कौन है वो? समिया का इंतज़ार करते हुए सहर खुद ही बाहर आ गई थी। उन्होंने स्ताइशी निगाहों से जाजिब नज़र शख्सियत को देखा जो आगे बढ़ गया था। दोस्त है, समिया ने ज़ेरे लब कहा और नज़रें चुराकर अंदर चली गई। सहर ने उलझकर समिया को देखा पर मज़ीद कोई सवाल ना पूछा। इशा की नमाज़ पढ़कर उसने थोड़ी देर तिलावत का इरादा किया था कि प्यास से हलक खुश्क हो गया। सकीना और जरी तो ख्वाबीदगी के आलम में थी, अलबत्ता लाइबा निगहत और रऊफ़ के इंतज़ार में जागी हुई थी। वो किचन में पानी के गर्ज से गई थी कि अकबी बागीचे से बिल्ली की आवाज़ आने लगी। आ गई मोहतरमा पेट भरने। लाइबा ने खाली गिलास रखा और दरवाज़ा खोलती हुई बागीचे में दाखिल हो गई। सफ़ेद रंग की बिल्ली जिसकी नीली आंखें लाइबा पर टिकी थीं, वो मुसलसल म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाल रही थी। आ गई तुम, सारे जहाँ में मटर गश्त करती फिरती हो और दूध के लिए यही घर याद आता है तुम्हें। लाइबा ने एक हाथ कमर पर रखकर उस बिल्ली को टोका। बाबा ने अच्छी आदत डाली है तुम्हारी, लाइबा कहे और वो म्याऊं म्याऊं करती जाए। अरे सुन लिया बाबा, अभी ला रही हूँ दूध, सब्र करो। उसने इशारे से बिल्ली को रुकने को कहा तो बिल्ली वहीं बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी थी जब लाइबा दूध से भरा प्याला बिल्ली के सामने रखने लगी। वो बिल्ली तेज़ी से दूध पीती चली गई। लाइबा वहीं सीढ़ियों पर बैठी उस बिल्ली के सर को सहला रही थी। वो समिया को दुख नहीं देना चाहता था, पर इसके अलावा उसके पास कोई हल नहीं था। उसे ताज्जुब था कि लाइबा ने कभी भी उसका जिक्र समिया से किया ही नहीं था, वरना वो दोनों तो पक्की सहेलियाँ थीं। लाइबा का समिया से उसके बारे में जिक्र ना करना कहीं इस बात की तो अलामत नहीं थी कि सैफ लाइबा की ज़िंदगी में कहीं भी नहीं था। वो उसके लिए शुरू से कभी अहम ही नहीं रहा था। या ये भी हो सकता है कि समिया के जज्बात से लाइबा आगाह थी तभी खामोश रही, लेकिन लाइबा से वो बहुत पहले एतराफ़ कर चुका था। कई अंदेशे उसके दिमाग में गुत्थम गुत्था हो रहे थे। वो इस तराबी हालत में चलता चला जा रहा था। उसका दिल उसके पैरों में जंजीरें बांध चुका था और वो अपने दिल की सुनता हुआ लाइबा के घर की तरफ बढ़ने लगा था।
कई दिन हुए थे उसे लाइबा को देखे या बात किए हुए। वो उससे बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन इस वक्त उसका इरादा सिर्फ एक झलक का था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रात के इस पहर वो तवक्को भी नहीं रखता था कि लाइबा उसे सामने मिलेगी। वो झलक की गर्ज से उसके घर के अकबी हिस्से में जो ही पहुंचा तो कदम जामिद हो गए। सफ़ेद चादर में लिपटी हुई वो खुद को समेट कर बैठी बिल्ली से बातें कर रही थी। उसका दिल चाहा था दीदार का, और कुदरत ने उसे बढ़कर मौका दिया था। सैफ तकता रह गया। चांद जैसा चेहरा दुपट्टे के हाले में चांदनी रात में मजीद चमक रहा था। सैफ के दिल की धड़कन बेकाबू थी। अगर लाइबा खुद पर मरकूज सैफ की आंखों को महसूस करके चौंक कर ना उठती तो शायद सैफ कितनी ही देर तक वहीं खड़ा उसे तकता रहता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सैफ को सामने देखकर लाइबा गुस्से से आगे बढ़ी थी। उसने दाएं बाएं देखा, कहीं कोई मौजूद तो नहीं था, वरना ठीक ठाक बदनामी होती। मैंने तो एक झलक मांगी थी, भले खिड़की में पर्दे की दर्द से ही सही। उसने तुम्हें पूरा का पूरा ला खड़ा कर दिया। उसके मासूम सफ़ेद चेहरे को सताइशी निगाह से सैफ ने देखा था। देख लिया, अब जाओ। वो जितनी नरमी से कह रहा था, लाइबा ने उतना ही मुश्तिल होकर कहा था। तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? वो अंदर जाने के लिए पलटने का इरादा कर रही थी कि सैफ ने बर्जस्ता पूछा था। एक शख्स फ़ोन क्यों नहीं उठाता सैफ? लाइबा ने सख्त लहजे में कहा था। सैफ खामोश रहा। इसलिए कि उसे कोई राब्ता रखना ही नहीं है। खामोशी के बाद लाइबा ने खुद ही जुमला मुकम्मल किया। बात नहीं करनी, कोई राब्ता नहीं रखना, कम अज़ कम यही बात तुम फ़ोन उठाकर भी कर सकती हो। फ़ोन ना उठाना क्या मकसद है? कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई ज़रूरी बात भी हो सकती है। अब सैफ संजीदगी से कह रहा था। हम दोनों के दरमियान ज़रूरी नहीं बल्कि बेमानी और बेतुकी बात ही हो सकती है। आगे से मुझे फ़ोन करने की जुर्रत भी मत करना। मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारे दिल में अपनी जगह कर सकूं? मैं खुद को किस तरह बदलूं? सैफ ने बेबसी से कहा तो लाइबा का दिल पसीज गया। वो तो जैसा था वैसा ही उसके दिल को भा गया था, लेकिन उसे अपने जज्बात पर काबू पाना था। मोहब्बत के लिए खुद को बदला नहीं जाता सैफ। जो इस बात का तकाजा करे वो मोहब्बत नहीं करता। बमुश्किल लाइबा के लबों से अल्फाज निकले थे। तुम्हारी खामोशी और बेरुखी का क्या मतलब लूँ मैं फिर? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? वो अफसरदा सा उससे सवाल कर रहा था। तुम अक्लमंद हो, अगर बात इशारतन हुई है तो तुम्हें समझना चाहिए, लेकिन अगर अभी भी तुम मुझसे पूछना चाहते हो तो मेरा जवाब नहीं है। वजह जान सकता हूँ? सैफ ने बर्जस्ता पूछा। कोई वजह नहीं सैफ, ज़रूरी नहीं हम जिसे चाहें वो भी हमें चाहे, या हम जिसकी ख्वाहिश करें वो किस्मत से हमें मिल जाए। मुआवजा भी तो हो सकता है। सैफ कोई मौका नहीं जाने दे रहा था। वो कैसे दिल के शहर को वीरान होने देता? यहाँ मुमकिन नहीं है, लिहाजा अपना वक्त बर्बाद मत करो। तुम बहुत अच्छे इंसान हो सैफ, और अच्छा ही डिज़र्व करते हो। अब जाओ यहाँ से, आइंदा इस घर के आसपास भटकना भी नहीं। मैं अपना जवाब दे चुकी हूँ, फ़ौरन निकलो। मामा बाबा ने तुम्हें देख लिया तो हैरान होंगे। वो रुकी नहीं, दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। उसके वजूद में लर्जिश पैदा हो गई थी। बहुत मुश्किल से खुद को संभाल कर लाइबा ने सैफ को इनकार किया था। उसके अंदर होती तोड़फोड़ उसके चेहरे पर वाज़ेह होने लगी थी। इससे पहले कि सैफ उसके चेहरे को पढ़ लेता, उसने वहाँ से फ़रार होना बेहतर समझा। सैफ ने उसका इनकार बर्दाश्त ना किया। वो शदीद इज़्तिराब में मुब्तला हो रहा था। उसने बेबसी से हाथ ज़ोर से मुंडेर पर दे मारा कि एक कराह की आवाज़ उसके हलक से निकल गई। आवाज़ सुनकर लाइबा जो ही पलटी तो मुतहय्यर रह गई। सैफ के हाथ से खून रिसना शुरू हो गया था। उसने बेध्यानी में मुंडेर पर लगे कांच पर हाथ दे मारा था, जिसने गहरी ज़रबें हथेली पर छोड़ दी थी। वो दर्द दिल से अपना हाथ देख रहा था। यकीनन ये ज़रब दिल पर लगी चोट से कम थी। सैफ, तुम्हें तो बहुत ज़ोर से लगी है। तुम रुको, मैं फ़र्स्ट एड बॉक्स लाती हूँ। लाइबा बौखलाए हुए उसके पास भागी थी। यकलख्त उसकी आवाज़ में नरमाहट महसूस करके सैफ ने उसे बखूबी देखा था। वो एक पल में ही भागी चली आई और दरवाज़ा खोलकर सैफ को अंदर आने को कहा। घर के साथ बनी सीढ़ियों पर लाइबा के साथ सैफ भी बैठा, और लाइबा तेज़ी से मरहम पट्टी का सामान निकालने लगी थी। उसके हाथों में कपकपाहट, उसके चेहरे पर तफक्कुर आमेज़ तासुर, उसकी फ़िक्र से भरी आंखें। सैफ के लिए कुछ छुपा न था। वो लाइबा के उस रुख को गौर से देखता रहा जिसे पहले नहीं देखा था। लाइबा ने रुई में दवाई डाली और हाथ पर लगी ज़रबों को देखा। उसने आहिस्तगी से रुई ज़रब पर लगाई तो सैफ की कराह निकल गई। दर्द हुआ? लाइबा ने डर कर पूछा। वो हैरानी की हालत में सर नफ़ी में हिलाने लगा। लाइबा ने धीरे धीरे उसकी ज़रबों पर रुई की मदद से खून साफ़ करना शुरू किया। शुक्र है कि खून रुक चुका था, चोट गहरी नहीं थी। एक और दवाई उसने कई रुइयों पर लगाई और कट्स पर रखती रही ताकि पट्टी कर सके। अपने लिए मुतफक्किर सी लाइबा को देखकर सैफ के दिल में उम्मीद जागी थी। लाइबा की आंखों के कटोरे छलक गए थे। वो डरती डरती सैफ की पट्टी कर रही थी। दूर जाने को कहती हो और रो तो यूं रही हो जैसे खुद को चोट लगी हो। सैफ कहे बिना ना रह सका। लाइबा की नज़र उसके चेहरे पर उठी। वो इतनी शिद्दत मोहब्बत से उसे देख रहा था कि एक पल के लिए लाइबा की नज़र उसकी नज़रों से बंद गई। उसने चेहरे को तर होता महसूस किया तो हाथ की पुश्त से उमड़ते आंसू फ़ौरन पहुँचे और फिर पट्टी की तरफ ध्यान दे दिया। मैं कमज़ोर दिल की मालिक हूँ, खून देख कर रो पड़ती हूँ। ज़्यादा गलत फहमी में पड़ने की ज़रूरत नहीं।
उसने बमुश्किल लहजा सख्त किया था। सैफ हल्का सा मुस्कुराया था। अब दर्द है? उसने पट्टी करके सैफ से पूछा। मरहम पट्टी तुमने की है, दर्द कैसे होगा? इस बहाने तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मौका तो मिला, सैफ ने कहा। तुम बाज कब आओगे? लाइबा ने शाकी लहजे में सैफ से पूछा। जब तुम दिल लगाना सीख लोगी, सैफ ने फरते जज्बात से कहा। तब भी नहीं आओगे, लाइबा ने कहा। हाँ, तब मज़ीद शरीर हो जाऊंगा, सैफ ने शरीर अंदाज में कहा। तो लाइबा पर से सैफ का ट्रांस ख़त्म हुआ। वो क्या कहे जा रही थी? उसने खुद को मलामत की और बॉक्स पकड़ती हुई फ़ौरन उठी। साथ सैफ भी खड़ा हुआ। उसके दिल में एक आस सी जागने लगी थी। उसी को ख़त्म करने के लिए लाइबा ने संजीदगी से उसे देखा था। सैफ, जिस तरह तुम औरत की इज्जत करना जानते हो तो तुम्हें मुझे ये बात बताने की ज़रूरत नहीं कि एक लड़की की ना का मतलब ना ही है। लाइबा ने मतानत खैज अंदाज में ऐसा वार किया जो सैफ के दिल में पेवस्त हुआ। तो मेरा जवाब जान गए हो, अब प्लीज़ जाओ। वो रुकी नहीं, फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर अंदर गई और लकड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो था ना फिर वो फसूं सास जिसके सामने होने से लाइबा अपने आप में कहाँ रहती थी। उसके पास ठीक ठाक अच्छा मौका था, बता देती कि उसकी निस्बत तय पा गई थी। पर वो तो ये तक भूल गई थी कि शायद समिया ने आज सैफ से एतराफ़ किया होगा। फिर मंगनी तो दूर की बात थी। वो दरवाजे के अकब में खड़ी खुद को मलामत और सर्जिश करती रह गई। पर सैफ के लिए एक आखिरी आस, एक आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी। वो मुश्किल कदम उठाता वहाँ से चला गया।